Good evening to everyone present here. This is Megha Patel, team member of Kash Foundation. We heartily welcome you all to the 15th Health Webinar of Kash Foundation under Kash Swasthya Manthan. Under its health vertical, Kash Foundation in association with GMASA and Mumbai Karamchari Sangh Vidyapeeth organized a free naturopathy medical camp on 16th 2009, November 2019. It was supported by Ministry of Ayush, Government of India and International Naturopathy Organization. Kash Foundation organized the first and second health webinar on 21st and 23rd of May respectively on the health precautions to be followed after lockdown. The speaker for these webinars were Dr. Parag Mehta, Dr. Jitendra Arya, Dr. Sushant and Dr. Suryabhan Dongre. The third health webinar was conducted on the 5th of June on how to build physical and mental immunity. The speaker for the session was Renuka Vyas. On the eve of International Day of Yoga, Kash Foundation's Kash Swasthya Manthan and Kevalya Dhama Mumbai organized a 3-day health webinar series on 19th, 20th and 21st of June 2020. The speaker for the fourth health webinar was Dr. Jawahar Mehta, who spoke on yoga, psychology and psychiatry on 19th June. Sri Raviji Dikshit was a speaker for the fifth health series on 20th June. He gave a speech on yoga and lifestyle. On 21st June, Dr. Apurva Shenoy spoke on yoga and diet as a speaker for the sixth webinar. On 9th of July, we conducted 7 health webinar in which Dr. Jyoti Kumbar was a speaker who spoke on role of naturopathy and yoga on women's health. On 10th of July, we had our 8th medical webinar in which Dr. Roshan Amal from NIN was the speaker who spoke on effect of emotions on health. On 26th of July, we had a 9th health webinar for which Narsima Kamath was a speaker and spoke on amazing healing powers of nature. We hosted a 10th health webinar for which Kritika Tiwari, a consulting pediatrician at Matushri Gomati Hospital, was the speaker and spoke on breastfeeding. Today, we come to the conclusion of the 5th day health event on exploring the application of naturopathy and Ayurveda, which started on 7th September 2020 as 11th health series, for which we invited Dr. Suryabhan Dongre as a speaker and spoke on food poisoning in India. On 8th September, we hosted our 12th health series. Our speaker for the day was Dr. Suryabhan Dongre, who spoke on pesticides and its effects on human beings. On 9th September, we had our 13th health series. Our speaker for the day was NM Kamath, who spoke on fast is a fast cure. On 10th September, we hosted our 14th health series, for which we had a speaker, NM Kamath, who spoke on food as a medicine. Now, I again welcome you all to the 15th health series of Kash Foundation under Kash Swasthya Manthan. Now, I would like to invite our founder trustee, Dr. Afkash Jadhav, to give us introduction about Kash Foundation. Good evening, everyone, one and all. Sometimes you begin a journey with a small step, and eventually you realize that small step taken, in fact, culminates into one big highway. Kash Swasthya Manthan, under the able leadership of Renuka and her entire team, is now witnessing the 15th health webinar today. Kash Foundation, a Mumbai-based NGO, works on education, environment, health and heritage. As was rightly pointed out by Megha, this journey began almost 9 months back. And when we look back today, we feel that we have really walked a lot. Since it's the concluding day for the 5-day health series, we would also like to share with you that Kash Swasthya Manthan will be also inaugurating something with which you can always be connected to. It is always our effort to come up with good medical programs, health programs, and awareness campaigns. जहां तक हो सके हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोगों तक पहुंचे, वो कड़ी बने जहां पर लोगों के स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक या स्पिरिचुअल, जिस तरह से भी हो, वो अच्छा रहे
एक अच्छा स्वास्थ्य अगर हमारे अंदर रहेगा तो एक अच्छा समाज हम पैदा कर सकते हैं। तो काश स्वास्थ्य मंथन एक सीरीज अभी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर सिर्फ जो मेंबर्स रहेंगे काश स्वास्थ्य मंथन के, जब आपने गूगल फॉर्म भरा होगा तो वहां पर उसका रेफरेंस आया है that would you like to be the member of Kash Swasthya Manthan, and I'm sure many of you have given your consent. We will soon send you the details how you can be the member of Kash Swasthya Manthan. So there will be some very exclusive programs only for the members of KSM. अगर आप मेंबर हैं तो उस प्रोग्राम का आपको ही सिर्फ लाभ मिलेगा। वो प्रोग्राम और वो लेक्चर सीरीज किसी और के लिए या डिस्कशन सीरीज किसी और के लिए ओपन नहीं होगी। तो आप लोग जो आपका ये ग्रुप है अभी फिलहाल बनाया हुआ है मेटिकुलसली विद द हार्ड वर्क ऑफ अल्केश जी, अल्पा, रेणुका, गीता राउत, बाकी की जो टीम मेंबर्स बनाया, उस ग्रुप को डिसमेंटल मत कीजिएगा। इवेंट के बाद ग्रुप को मत छोड़िएगा, ग्रुप में रहिए। और काश स्वास्थ्य मंथन की मेंबरशिप हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। मेंबरशिप सिर्फ नाम मात्र रहेगी, बहुत ही नॉमिनल उसका रहेगा पार्ट, लेकिन उसके कारण आप शायद हमारे से जुड़े रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक विषय पर आगे जाकर कुछ सीरीज या कुछ लेक्चर सीरीज आपको चाहिए तो आप वो भी हम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो लेक्चर सीरीज भी और वो डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज करें। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई एम इक्वली हैप्पी टू वेलकम वन ऑफ माय वेरी एफिशिएंट and equally a meticulous team member of Kash Foundation. She's also the joint director, Renuka Vyas, today. It is actually welcoming in-house, but Renuka Vyas has come a long way. When she started the activities with Kash Foundation, in fact, the vision, the plan, the approach, what she had, in fact, is seeing the daylight. So on behalf of Kash Foundation family, we welcome you, Renuka Vyas, on the floor. I'm sure this association which all of you have with us, Kash Swasthya Manthan, will be really longer. Wish you all a very fruitful day of learning. Thank you. Over to you, Megha. Now, I would like to invite Alba Mehta, the core member of Kash Swasthya Manthan, to give us information about Kash Swasthya Manthan. Thank you, Megha. Kash Swasthya Manthan is a very promising name under the banner of Kash Foundation. It is set to make a mark in the field of healthcare. Kash Swasthya Manthan aim is to reach out to the masses of all sections of societies and to make people aware that one can live without medicine by simple way of following the nature. People are unaware of the exact benefit of alternative medicines and therapies, which if followed with the proper guidance and the knowledge, one can lead to major saving in their medical expenses, apart from keeping them medically fit. Kash Swasthya Manthan's ultimate aim is to make complete awareness to the society in this field through renowned experts and also to accomplish the vision of Kash Swasthya Manthan for a healthy and disease-free society. Thanks to all of you for joining us. Over to you, Megha. Now, I would like to invite Healer Renuka Vyas, Joint Director of Health Kash Foundation and Coordinator of Kash Swasthya Manthan. She is an alternative medicine therapist, naturopath, iridologist, and Reiki Grandmaster teacher. Renuka Vyas is HOD of Rural Development and Women Empowerment in Rishi Sanskriti Vidya Kendra at Pune. She has also worked as a principal at School of Nature Cure at Juhu. From last 21 years, she is practicing aromatherapy, Reiki, acupressure, yoga, naturopathy, dietitian, sujok, vacuum therapy, crystal therapy. Today, she will be speaking on twinning of alkaline and acidic sources. Today's session will be moderated by Alpa Mehta, and she will also take the question answer session after the presentation of healer Renuka Vyas. Then conclusion will be from Alpa Mehta on the session of Renuka Vyas. Ma'am, the floor is yours.
Thank you, Megha. And thank you so much for काश फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है और लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है वो जरिया मुझे काश फाउंडेशन थ्रू मिला है। काश स्वास्थ्य मंथन का जो मेन तो एक्सपर्ट्स अपने पास आ करते हैं, वो सब मिलके कुछ नई चीजें और कुछ ऐसी चीजें जहां पे हम आपको इस तरह से हेल्प करें कि कभी आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम लोग बीमार ही ना पड़े तो हमारी काश स्वास्थ्य मंथन की एक यही मेन योजना या तो मेन विजन जो है यही है कि हम आपको हर तरह से मदद करें। सो आज का मेरा जो टॉपिक है एसिड एंड अल्कलाइन। जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ में हम लोग ध्यान देते हैं, वैसे ही नेचुरोपैथी में ऑलवेज एसिड एंड अल्कलाइन, ये दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि एसिड और अल्कलाइन एक्चुअली है क्या। हमें हमेशा दिमाग में बिठाया जाता है कि गर्म है चीजें या तो ठंडी है, तो वो इजी हो जाता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं हम लोग ये नहीं खा सकते हैं। अलसी जैसे बोला कि अलसी बहुत गर्म पड़ती है तो हम लोग ये नहीं ले सकते हैं। तो गर्म पड़ सकती है, ठंडी हो सकती है, ये सब चीजों का आज जो है हम लोग चीजें देखने वाले हैं कि किस तरह से क्या है। हर एक का एक पीएच लेवल है, वो पीएच लेवल एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे आज मेरा सलाइवा है तो सलाइवा का भी एक पीएच लेवल है। हर फूड का एक पीएच लेवल होता है, लेकिन ये पीएच लेवल है क्या। हमने हमेशा देखा है कि यूरिन टेस्ट करवाते हैं या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमारा एक पीएच लेवल बताया जाता है। तो व्हाट इज पीएच? सो पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो हर बॉडी के अंदर होता है, हर फूड के अंदर होता है। सो बॉडी के पीएच लेवल से हमें पता क्या चलता है? तो ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा कितनी है और अल्कलाइन की मात्रा कितनी है। तो जैसे पीएच लेवल का अगर हम ध्यान से बराबर से देखें तो जैसे पीएच लेवल ज्यादा होता है वैसे अल्कलाइन बॉडी में बढ़ता है। अल्कलाइन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके पीएच लेवल हमेशा हाई होते हैं, और जहां पे भी पीएच लेवल कम कम होते जाता है वहां पे एसिड का लेवल बढ़ जाता है। मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि एक सिंपल चीज है कि जहाँ पे एक एसिड की बॉटल ली है और मैंने अगर एक कपड़े पे डाला तो वो कपड़े की हालत क्या होती है, क्योंकि एसिड का पीएच लेवल जो है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से कपड़ा जो है वो पूरा जल जाता है। तो सेम हमारे शरीर के अंदर भी अगर हमारा पीएच लेवल कम होती जाएगा तो एसिड बढ़ती जाएगा और उसकी वजह से हमारे मसल्स मेल्ट होने, मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाना, बोन्स वीक हो जाना, वीकनेस आना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होना। तो ये जो चीजें हैं वो सब हमारे पीएच लेवल का इनबैलेंस होने की वजह से होता है। तो हमेशा हमें हमारा पीएच लेवल जो है वो बैलेंस रखना है। तो ये पीएच लेवल बैलेंस कैसे रखेंगे? सिंपल एक है कि पीएच 7 जो होता है, पीएच का एक होता है 0 से स्टार्ट होता है 14 तक होता है, पीएच 14 तक होता है। तो वैसे ही पीएच 7 जो है इट्स अ न्यूट्रल, जो पानी में होता है, और 7 से जितने भी नीचे जाते हैं वो एसिड धीरे 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 बढ़ाता है, और 7 से यहाँ पे 14 तक वो धीरे धीरे जो बढ़ जाता है वो एसिड को कम करके अल्कलाइन को बढ़ाता है। तो हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए? एसिड एंड अल्कलाइन का चक्कर क्या है? तो एसिड एंड अल्कलाइन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारा एसिड लेवल समझ लीजिए कि कम होते गया, पीएच लेवल कम होते गया, एसिड बढ़ते गया तो भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर बॉडी में अल्कलाइन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी नहीं चलेगा। तो उसे हमें बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर एसिड लेवल बढ़ता क्यों है? तो एक सिंपल है, 2 दिन से नहीं 4 दिन से एटलीस्ट हम लोग डाइजेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर कामत ने भी हमें बताया डाइजेशन सिस्टम हमारी ठीक होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन पे इतना लंबा लेक्चर हो सकता है कि हम लोग 3 महीने तक एक ही टॉपिक को हमारे कॉलेज के टाइम पे हम लोग सुनते थे।
कॉन्स्टिपेशन। तब लगता था कि क्या ये पूरा टाइम हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में ही सुन रहे हैं, बट आज 20 साल की प्रैक्टिस के समय हम लोग को पता चला है कि जब तक हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है तब तक हम लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। सो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है? तो सिंपल है, एक इतना इजी में मैं आपको एक सिस्टम समझाना चाहती हूँ कि हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज मोशन के लिए जाते हैं रोज, लेकिन दिन में हम लोग 4 बार खाते हैं, मोशन हमें 1 बार या मैक्सिमम 2 बार होता है। तो क्या हमने जितना खाया है उतना गट निकला है? नहीं निकला है। सो ये गट है वो जाता कहाँ पे है? तो हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे कर्व्स है। अभी क्या होता है ना, ये जो कर्व्स हमारे यहाँ पे जो होते हैं, उस कर्व्स में सब मैटर जो है वो, टॉक्सिक मैटर जो है वो जम जाता है, और वो जमने के बाद पूरा वो सूख जाता है। आज एक सिंपल चीज है, अगर मेरे घर के अंदर में एक टिफिन लेती हूँ, टिफिन के अंदर दाल चावल रोटी सब्जी मैं डाल देती हूँ और उसके अंदर पानी भी डाल देती हूँ और टिफिन बंद करके रख देती हूँ और मैं भूल गई, तो जब मैं उसे ओपन करूंगी एक 6-7 घंटे के बाद, तो उसमें एक स्मेल आएगी। इसे कहते हैं गैस। पहले गैस फॉर्म होती है, और अगर वो 7 घंटे से भी ज्यादा, मैं एक दिन पूरा दिन मैं वो भूल गई हूँ और वो वैसे ही रहा है, और मैं दूसरे दिन में अगर उसको देखती हूँ, फिर क्या होगा, बास जो आएगी वो खट्टी बास आएगी, एक गंदी स्मेल आएगी, तो वो होता है एसिड। तो सोचिए, पहले गैस फॉर्म होता है और फिर एसिड बनता है। वैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर जो कचरा जमा हुआ है, उस कचरे में गैस फॉर्म होता है। हम वहां पे तभी भी अपने पेट साफ करने की कोई चिंता नहीं करते हैं, और वो वैसे ही सड़ते जाता है, सड़ते जाता है, सड़ते जाता है, फिर वहां पे एसिड एक्यूमुलेशन होता है। और जब गैस और एसिड, अभी एक सिंपल है, जब मैं मेरे हाथों की भी मूवमेंट कर रही हूँ, तो मेरे हाथों में हर जगह पे एक स्पेस है, तो ये स्पेस जो है वहां पे क्या होगा, तो वहां पे जाके ये गैस और एसिड फर्म हो जाते हैं। और जब ये फर्म हो जाते हैं और हम लोग ऐसे हाथों को ऐसे तोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, गैस और एसिड थोड़ी देर के लिए रिलीज होता है, लेकिन वापस मेरी मूवमेंट नहीं होगी, तो अगेन गैस एंड एसिड जो है वो वहां पे फर्म होते जाएगा। और जितना ये फर्म होती जाएगा, उतना वहां पे स्वेलिंग होना, वहां पे पेन स्टार्ट होना, ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है। तो हम जब बोलते हैं आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, गाउट, ये जो चीजें हो रही है, तो ये चीज ऐसे ही शुरू नहीं होती है। अगर पास्ट में आपका पेट बराबर से साफ नहीं आया है, आपको गैस हो गया है लेकिन आपने उसका इलाज नहीं किया, आपको एसिडिटी हो गई, आपको एसिड बढ़ रहा है, इलाज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये जॉइंट्स पे हो सकते हैं। और क्या होता है, जहाँ पे एसिड जाके फॉर्म होगा, वहां पे वो मेल्टिंग प्रोसेस करेगा, अपना साइनोवियल फ्लूइड जो हर जॉइंट्स में होता है, वहां पे वो डिहाइड्रेशन दे देता है। आजकल स्पाइन के अंदर भी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से कंप्रेशन आ जाता है। तो क्या है, वो ऑयल पूरा वहां से चला गया है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, तो डेफिनेटली हम इस पे ध्यान देंगे कि हमें उस पे भी कैसे करना है। तो एक सिर्फ पेट साफ नहीं होना कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड यू नो व्हाट, कि जितना हम लोगों को एसिड एसिड पे हमने नहीं ध्यान दिया, फिर वो स्किन में भी जाके बैठता है, स्किन के लेयर्स पे, और तब जाके हमें स्किन के डिजीज होते हैं। स्किन में हम लोग एक्जिमा, सोराइसिस, अर्टिकेरिया जैसी चीजें कब होती है, क्योंकि एसिड फॉर्म हो गया है। तो हमें वहां पे अल्कलाइन बेस हमारा बढ़ाना पड़ेगा। क्या हो गया है ना, नेचर तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन देती है, बट हम उस पर प्रोसेस करते हैं, तब जाके ये चीज एसिड में कन्वर्ट होती है। हर चीज अल्कलाइन है, हर चीज, लेकिन हमने उसको प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल टमाटो के लिए काफी लोग बोलते रहते हैं कि नहीं, हम लोग को टमाटर तो चाहिए ही, और ऐसे हो गया कि बच्चे कुछ सब्जियां नहीं खाते तो पंजाबी ग्रेवी बना लिया, बच्चों ने खा लिया, हमारा काम खत्म हुआ। लेकिन ये धीरे 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 कहाँ पे लीड कर रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं और हम लोग क्या खा रहे हैं, कहाँ है एसिड अल्कलाइन का बेस, कहाँ है उसका बैलेंसिंग। टमाटर इज अल्कलाइन फ्रूट, टमाटर इज अ फ्रूट, इट्स नॉट अ वेजिटेबल, बट वी आर यूजिंग लाइक अ वेजिटेबल। टमाटर को जैसे ही कुक कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं, वो हाईली एसिडिक बन जाता है। काफी लोगों को इसमें से कंप्लेंट्स होंगी कि मैं पाव भाजी खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी जैसा हो जाता है, हेडेक हो जाता है, गले में तकलीफ होती है, खांसी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि टमाटर, आपके ऑलरेडी बॉडी के अंदर एसिड एक्यूमुलेशन है,
और उसमें आपने टमाटो का सूप या टमाटर से बनी हुई सब्जियां ले ली, तो वो क्या करेगा, एसिड को और भी बढ़ा देगा। और हम लोग जो भी सूप या कुछ भी बनाते हैं, प्लेन तो बनाते नहीं है, उसमें वापस हम लोग मसाले यूज करते हैं। तो सोच सकते हो कि हम लोग किस और पे जा रहे हैं। और हम लोग बदनाम किसे कर रहे हैं, लेमन, नींबू। नींबू इज, लोगों का मानना है कि नींबू हाईली एसिडिक है। बट एक बात बता दो, लेमन इज हाईली अल्कलाइन। जितना हम, जहां पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन आएगा वो एसिड ही रहेगा, लेकिन जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है लेमन, तब वो हाईली अल्कलाइन बन जाता है। तो उसके दो बेस है, एक एसिडिक बेस और अल्कलाइन बेस। तो एप्लीकेशन करना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इट्स हाईली एसिडिक। और जहां पे इंटरनल एप्लीकेशन आता है, जब सलाइवा के साथ उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बनता है, तो वो अल्कलाइन बन जाता है। इसीलिए कभी भी लेमन को गर्म नहीं करना है। गुजराती लोग है, मारवाड़ीज है, क्या करते हैं, दाल के अंदर लेमन डाल के उसे बॉईल करते हैं। तो क्या हो गया, ऑलरेडी दाल सब एसिडिक प्रोटीन है, और उसके अंदर वापस लेमन डाल के बॉईल कर लिया, फिर बोलते हैं दाल पीने से मुझे एसिडिटी हो रही है। ऑफ कोर्स होगी। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए कि कभी भी लेमन को गर्म नहीं करना है। हमारे यहाँ पे भी प्रथा कैसी है कि पोहा बना लेते हैं, उसके ऊपर से लेमन डालते हैं, साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं, ऊपर से लेमन डालना है। लेमन को जैसे ही आप गर्म करोगे, वो हाईली एसिडिक बन जाएगा। तो डेफिनेटली हर एक का गुण जो है वो अलग अलग है, उस गुण को समझिए, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सोचिए कि मैं लेमन लेती हूँ तो मेरे जॉइंट्स पेन होते हैं, तो लेमन का तरीका क्या है लेने का, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लेमन इज अल्कलाइन फ्रूट, इट्स नॉट एसिडिक फ्रूट। ओके, अभी अल्कलाइन का जिस तरह से बैलेंस किस तरह से हमारे शरीर पे होना चाहिए, या बेस्ट इज व्हाट, तो पीएच लेवल पानी का जो बताया गया है वो न्यूट्रल पे है। तो सबसे बेस्ट अल्कलाइन क्या है, तो वाटर। बट हम लोग वाटर को भी एसिड बना के पी रहे हैं। कैसे, तो फ्रिज का पानी हाईएस्ट एसिडिक है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो गैस है, उस गैस से वो पानी ठंडा हो रहा है, और वो जो ठंडा पानी है, इट्स वेरी 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 डेंजरस फॉर योर लिवर, लंग्स, किडनी। लॉन्ग टर्म में उनको पता चलेगा कि उनके कितने इश्यूज आ रहे हैं इससे। इसलिए फ्रिज का पानी जो है वो जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है। फ्रिज का पानी एसिडिक है, इट्स नॉट अल्कलाइन। तो पानी कौन सा अल्कलाइन है, तो मटके का पानी बेस्ट। सबसे नंबर 1 पे अगर मैं करूं, अगर मुझे नंबर्स देने हो, तो फर्स्ट रैंक पे आता है उबला हुआ पानी, सेकेंड रैंक पे आता है मिट्टी के बर्तन पे रखा हुआ पानी, तीसरे नंबर पे अगर कुछ आता है तो वो है चांदी का बर्तन। चांदी का मेटल, इट्स अमेजिंग। कैंसर पेशेंट को जब हम लोग जब वो कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, तब उनके बॉडी का एसिड लेवल, उनका पीएच लेवल बहुत कम हो जाता है। तो उस टाइम पे एसिड इतना बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे हमें अल्कलाइन डाइट देना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला अल्कलाइन डाइट में होता है कि पानी हो उतना चांदी के ग्लास में पियो। और उससे भी ज्यादा अल्कलाइन क्या है, तो पर्ल्स, मोती। सिंपल है, अगर आप पर्ल्स ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बहुत महंगे हैं, तो आप चांदी के ग्लास में पानी लेके उसके अंदर सच्चे मोती 2 से 3 डाल दीजिए, और वो पानी आप पीते रहिए। हाइपर से हाइपर एसिडिटी में भी आपको इस पानी से रिजल्ट अमेजिंग मिलेगा। सो सिल्वर का पानी और मोती का पानी सबसे बेस्ट पानी है अल्कलाइन के लिए। सो जब सलाइवा का पीएच अगर हम लोग देखें, हर एक के बॉडी का सलाइवा का पीएच अलग अलग आता है, बट इन जनरल सलाइवा का पीएच जो होता है वो 6 पे आता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ही फैक्ट्री है अल्कलाइन की। तो हमें वहां पे ध्यान देना है कि सलाइवा, अभी पानी का पीने का भी तरीका जो है वो कैसे पिएंगे। हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं, एक ग्लास ऐसे घड़ करके पी जाते हैं, बट ये तरीका भी गलत है। उससे पानी से भी एसिडिटी, काफी लोगों को मॉर्निंग में मैं बोलती हूँ ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, नहीं नहीं मैम, हम लोग ल्यूक वार्म पानी नहीं पी सकते, हम लोग को पानी से एसिड होता है। यस, आई एग्री,
पानी से भी एसिड होता है, पानी से भी गैस होता है। तो उसके लिए क्या करना है, पानी बहुत ज्यादा शांति से पीना है। पानी पीने के लिए कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। तो इस पानी को किस तरह से हम कंज्यूम करें, अगर पानी से हमें गैस और एसिडिटी हो रही है तो इट्स कॉल्ड टॉनिक वाटर। जैसे मैंने बताया कि सिल्वर ग्लास के अंदर आप मोती डाल के वो पानी पी सकते हैं। सिर्फ सिल्वर ग्लास भी, अगर आप मट्टी के बर्तन में सिल्वर ग्लास डाल देंगे तो भी वो पानी अल्कलाइन हो जाएगा। बट रिक्वेस्ट ये है कि बॉम्बे के लोगों को या कलकत्ता के लोगों को या बैंगलोर के लोगों को कॉपर में पानी नहीं पीना है। आई नो सब लोग सोचेंगे कि हम तो बचपन से कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहते थे और लोगों ने हमें बताया भी है कि कॉपर के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा है। बट वो कौन सा पानी, नदी, तालाब, कुआं, वहां का अगर आप पानी पी रहे हो, बेशक आप कॉपर का पानी पीजिए, अमेजिंग है वो बॉडी के लिए। लेकिन जहाँ पे पानी के अंदर क्लोरीन मिक्स हो जाता है वहां पे आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि क्लोरीन के साथ जब कॉपर आता है तब वो कॉपर क्लोराइड बन जाता है। और क्या होता है, चूहे मारने के लिए जो पॉइजन यूज किया जाता है उसमें ये सब्सटेंस डाले जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि हमें कॉपर का पानी, क्लोरीन वाला पानी कॉपर के बर्तन में रख के नहीं पीना है। और बॉम्बे में हमें क्लोरीन का ही पानी मिलता है। सो फ्रेंड्स, इट्स रिक्वेस्ट कि अगर हमारे घर के अंदर कॉपर का बर्तन भी है तो उसे निकाल दीजिए, मट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, इट्स अमेजिंग। क्या होता है क्लोरीन का पानी, कॉपर एंड क्लोरीन का मिक्स होके क्या होगा, तो धीरे धीरे स्किन के डिजीज होते हैं। चलो मुझे नहीं हुए, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उस जनरेशन में ये कॉपर के बर्तन में पानी जिन्होंने भी पिया है उनके नेक्स्ट जनरेशन में स्किन के डिजीजेस ज्यादा होते हैं। जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी इसे प्रूव किया है, क्योंकि मेरे कजिन का बच्चा पैदा हुआ, लिटरली आपको लगेगा कि चूहा पैदा हुआ है, स्किन लिटरली वैसी थी। तब वहां पे हमने पूछा कि कैसे, क्यों ये ऐसा, तो उन्होंने बोला आपके पूर्वजों ने बहुत कॉपर इस्तेमाल किया होगा जिसकी वजह से आज ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि उस बच्चे की तो लाइफ कुछ रही ही नहीं। बट तब से मैंने अपने आप में सोचा है कि मैं लोगों को जितना हो सके उतना एक मैसेज पहुंचाऊंगी कि कॉपर के बर्तन में क्लोरीन वाला पानी नहीं पीना है। सो ये सबको एक रिक्वेस्ट है और एक नॉलेज की ये देखिए आप किस तरह से हमारी बॉडी खराब हम खुद कर रहे हैं। सो जैसे हम लोग खट्टी चीजों से डरते रहते हैं कि एसिडिटी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा, बॉडी का एसिड बहुत बढ़ जाएगा या स्किन में बहुत रैशेस आ जाएंगे, तो क्या, तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, सिंपल चीजें हैं। आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे, कल कामत सर ने भी बताया कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे जो चीजें उग रही है, रीजनल, सीजनल एंड इंडियन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के अंदर एक्चुअली कोकम बहुत ज्यादा बनता है, तो कोकम का इस्तेमाल फूड के अंदर हमें करना चाहिए। और कोकम इतना अल्कलाइन है कि वो एसिड को कम कर देता है फूड में से, इसीलिए कोकम की खटास जितनी आप यूज कर सकेंगे उतनी आपके बॉडी के लिए अच्छा है। तो जैसे महाराष्ट्र में कोकम यूज करते हैं, साउथ में ज्यादा इमली इस्तेमाल होती है, पंजाब की साइड पे आमचूर यूज होता है, तो उस आमचूर से उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं बॉम्बे में बैठी हूँ और मैं आमचूर पाउडर ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे जॉइंट्स में पेन होगा। फिर वैसे नॉर्थ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अनारदाना का किया जाता है। खट्टी चीजों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो अनारदाना। तो हर रीजनल के लिए उसके यहाँ का एक अल्कलाइन फ्रूट दिया गया है। हमारे यहाँ पे भी हम इमली खा सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, खजूर की चटनी के साथ इमली मिक्स करते हैं, तो हम उसे कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। तो हर चीज को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक आंवला का है, आंवला इज हाईली अल्कलाइन। आंवला के गुण, उसे आप बॉईल भी पूरी तरह से कर लोगे लेकिन आंवला अपने गुण नहीं छोड़ता है। बट सीजन में आंवला लेना जरूरी है।
हमें किसी ने बता दिया है कि आप 12 महीना आंवला ले सकते हो, बट सीजन में जो आंवला बनते हैं, जो एनवायरनमेंट उसे पकाता है, वो हम इंसान नहीं कर सकते हैं। फिर हमें उसमें और ज्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डाल के उसे बनाना पड़ता है। तो यही आंवला है जो 12 महीना लेने से अस्थमा, अल्कलाइन बॉडी में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कफ की मात्रा बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें आंवला, यस, अगर वो 4 मंथ्स में जो आंवला बनाया हुआ है, आंवला का जो रस बनाया गया है, और वो हम लोग कैन घर पे लाके उसको इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेटेड है, तो ही आप आंवला घर पे यूज कर सकते हैं। अगर मैंने आंवला की चिप्स घर पे बनाई है, 4 महीने के अंदर मुझे बनानी है और वो मैं 12 महीना खाऊंगी, च्यवनप्राश उस 4 महीने में बनाया गया है, तो मैं 12 महीना यूज कर सकूंगी। बट मैं अभी ये सीजन में, बारिश के सीजन में आंवला लाके उसका मुरब्बा बनाऊं और वो खाऊं, मुझे इरिटेशन होना ही होना है, उससे मुझे खांसी होनी ही होनी है। तो बहुत ये छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम लोग एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस करेंगे तो हमें ये इजी हो जाएगा, अपनी लाइफ इजी हो जाएगी, कोई हेडेक भी नहीं होगा। अभी आंवला के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो पल्सेस। बहुत लोगों का ये मानना है कि पल्सेस, हमें छोले तो बहुत पसंद है, हमें राजमा भी पसंद है, पसंद सबको चीजें है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रिपरेशन जो होता है उसमें बहुत सारे गरम मसाले, टमाटर की ग्रेवी, कांदे की ग्रेवी, लहसुन, ये वो सब डाल के, ऑलरेडी वो प्रोटीन जो है वो एसिडिक प्रोटीन है, उसमें हम लोग ने क्या किया, मसाले सब डाल दिए, तो वो जो प्लेटर है वो पूरा एसिडिक बन जाता है। तो मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोच समझ के, अगर मुझे आज मैंने छोले खाए हैं और मुझे एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, तो मैं मेरे टंग टेस्ट के लिए जाऊंगी या मेरी बॉडी के टाइप्स के लिए जाऊंगी। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं, वो हमें डिसाइड करना है। तो पल्सेस में एसिड बहुत ज्यादा होता है, बट ये पल्सेस के जो बीन्स होते हैं, जैसे चौली हो गई, राजमा के बीन्स, फ्रेंच बीन्स हो गए, तो जो बीन्स होती है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने के बाद वो, अगर बीन्स हम लोग खाते हैं तो वो हमें बॉडी के अंदर एक अल्कलाइन इफेक्ट देगा, लेकिन वो सूख जाता है, सन से वो ड्राई हो जाता है, सूर्य के ताप से वो पूरा ड्राई हो जाता है, और वो ड्राई होने के बाद वो उसमें एसिड कंज्यूम हो जाता है। अभी वो एसिड बन गया है, तो एसिड ज्यादा बनने की वजह से ही वो पूरा साल टिक रहा है, ठीक है। तो मुझे जब उसे, अगर उसे इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी, तो सिंपल उसे पानी में सोक कर देंगे, और उसे सोक करने के बाद उसमें अल्कलाइन इफेक्ट आता है। सोक करने के बाद ऊपर का पानी निकाल देंगे, पानी निकालने के बाद उसको स्प्राउट करेंगे और फिर हम लोग ये खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी जब मैंने सोक करके भी यूज में कर रही हूँ, फिर भी एसिड लेवल, राजमा, छोले, चना, बेसन, तुअर दाल, उसके अंदर एसिड का प्रमाण तो रहता ही है। वो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एसिड पूरा उसमें से नहीं जाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही वो है। तो मूंग है, मोट है, चौली है, बटाना है, वो सोक करने के बाद उसका अल्कलाइन लेवल बढ़ता है, तो वो डाइजेस्ट होने के लिए भी इजी होता है, और उसे हम लोग बैलेंस डाइट के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। उड़द की दाल हाईली एसिडिक है, इसीलिए हम जब, जिन्हें भी बहुत ज्यादा एसिडिटी, माइग्रेन का इश्यूज होता है, और वो लोग इडली, डोसा या मेंदू वड़ा ऐसी चीजें खाते हैं, तो उनको एसिडिटी और भी बढ़ती है। सांबार में हम तुअर की दाल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो चीजें हमें ज्यादा एसिडिक करती है। लेकिन ड्रमस्टिक जो है वो अल्कलाइन है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, उस दाल के अंदर अगर हम लोग ड्रमस्टिक डालते हैं तो हमने उसे बैलेंस किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पूरा अल्कलाइन हो गया है, लेकिन खाने जैसा रहेगा। तो इसलिए हमेशा हमें एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके हमारा फूड बनाना जरूरी है। फिर हमारा मेन चीजें आती है ड्राई फ्रूट्स। लोग हमेशा बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हम लोग को किस तरह से लेने चाहिए, या ड्राई फ्रूट एसिडिक है क्या। यस, आप अगर बॉम्बे में रह रहे हो, ड्राई फ्रूट आपको एसिडिक लगेंगे ही। अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो, वहां पे ऑलरेडी क्लाइमेट अल्कलाइन होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे आप ड्राई फ्रूट खाइए, और वहां पे ही ज्यादा उगता है, तो वहां पे आप ड्राई फ्रूट ऐसे ही खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बॉम्बे में हो, आप राजस्थान में हो, आप कच्छ में हो, ऐसी सब जगह पे हो, और वहां पे आप ऐसे ही ड्राई फ्रूट खा रहे हो, आपको लूज मोशन हो जाएंगे, आपका पीएच लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा,
एसिड लेवल बढ़ जाएगा तो वो इंडाइजेशन होगा। तो ऐसे प्रोटीन को लेने के लिए हमें क्या करना है, इसीलिए कंपल्सरी हमें सोक करना है। और अगर ड्राई फ्रूट को आप चांदी के बर्तन में सोक करेंगे तो वो ज्यादा अल्कलाइन इफेक्ट देगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जिसे हाइपर एसिडिटी हो जाती है उन्हें क्या करना चाहिए, एक चांदी के ग्लास में पानी लेना है, एक ग्लास भर के, उसके अंदर ब्लैक रेजिन्स, काली किशमिश 10 से 12 डाल देनी है, पूरी रात सोक करके सुबह एम्प्टी स्टमक वो पानी भी पीना है और वो किशमिश भी खानी है। इट्स अ हाईली अल्कलाइन वाटर। तो मॉर्निंग में ही अगर आपने अल्कलाइन दे दिया तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपको बैलेंस लगने लगेगी। तो वहां पे हम हमारा एसिड जो है वो यूरिन से पूरा निकाल लेते हैं, मॉर्निंग में ही वो पूरा एसिड निकल जाता है। हमारे बॉडी का एसिड और अल्कलाइन बैलेंस किडनी करती है, इसलिए किडनी पे ज्यादा प्रेशर हमें नहीं देना चाहिए। इसलिए एसिडिक प्रोटीन कम करके अल्कलाइन प्रोटीन लेना है। तो क्या अल्कलाइन प्रोटीन कौन सा है, तो मैंने बताया मूंग है, मोठ है, चौली है, वटाना है, फ्रेंच बीन्स है, जितनी भी बीन्स है वो अल्कलाइन प्रोटीन है। अगर अल्कलाइन प्रोटीन बराबर मात्रा में लेंगे तो हमें बॉडी में स्वेलिंग भी नहीं आएगी। और ये स्वेलिंग भी धीरे धीरे, जिसे भी स्वेलिंग ज्यादा आ रही है उन्हें एवरी डे अगर 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स कंज्यूम करते हैं तो इट्स अल्कलाइन प्रोटीन। तो इससे क्या होता है, लिवर प्रॉपर वर्क करता है, किडनी प्रॉपर वर्क करेगी और किडनी टॉक्सिक मैटर जो है वो फ्लश कर देगी, जिसे किडनी एडिमा कहते हैं, स्वेलिंग आ जाना, वो इजीली निकल जाता है। इसलिए अल्कलाइन प्रोटीन का कंज्यूम करना हमें जरूरी हो जाता है। ड्राई फ्रूट के अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है काजू। काजू हम लोग कितना भी उसे पानी में भिगो भी देंगे तो भी वो एसिडिक ही है। इसलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और जब हमें पूछते हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं लग रहा है, बहुत स्लो डाइजेशन हो गया है, तो स्लो डाइजेशन में हम लोग क्या कहते हैं, खाना खाने के बाद 2 काजू एकदम चबा चबा के खाओ, ताकि उसका जो एसिड है वो एसिड बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेशन देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हेडेक और बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है आपको और आप काजू खा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो सोचिए हम जो पंजाबी ग्रेवी बनाते हैं उसमें टमाटर भी डालते हैं, कांदा भी डालते हैं और काजू की ग्रेवी भी डालते हैं। तो हमें क्या डालना है, तो वाटरमेलन सीड्स जो होते हैं, जिसे मगज के बीज बोला जाते हैं, इट्स हाईली अल्कलाइन। तो वो सीड्स हम लोग काजू के तौर पे हम उस पंजाबी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जब हमें एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस देखना है कि मेरा बॉडी ज्यादा एसिडिक है कि अल्कलाइन है क्या है, तो योगा में हमें सिखाया जाता है कि आपकी दोनों नाड़ी ठीक तरह से चलनी चाहिए, बैलेंस। तो सूर्य नाड़ी जो है वो एसिड के लिए मानी जाती है और चंद्र नाड़ी जो है वो अल्कलाइन के लिए मानी जाती है। तो राइट साइड इज योर एसिडिक बॉडी एंड लेफ्ट साइड इज योर अल्कलाइन बॉडी। तो क्या करना है कि जब हमने खाना खा लिया और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा सूर्य नाड़ी जो है वो प्रॉपर चलना जरूरी है, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है या बहुत ज्यादा गैस हो रहा है, इंडाइजेशन चल रहा है, तब हमारा अल्कलाइन लेवल बॉडी में बढ़ना चाहिए। तो हमारा चंद्र नाड़ी जो है वो बराबर से करने चाहिए और ये प्राणायाम से हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत छोटी है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए आपको कितना फर्क पड़ जाएगा, बॉडी का बैलेंस एक आ जाएगा, जिससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। क्या है, जब मेरे फैमिली में मुझे पता है कि आर्थराइटिस या रूमेटिज्म या गाउट कोई भी चीजें हो रही है, तो मुझे उससे अपने आप को बचाने के लिए मेरा डाइट बैलेंस होना जरूरी है। तो ये आपको बताएगा कौन, इसलिए हमारे जैसे नेचुरोपैथ्स की आपको जरूरत पड़ती है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है और कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के बाद आपको उस हिसाब से आपके बॉडी टाइप्स के ऊपर डाइट रेकमेंड करते हैं कि यार आपको यहाँ पे ये इतना लेना है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी जहाँ पे बैलेंस करना है एसिड और अल्कलाइन को, तो लोगों को जब डाइजेशन के लिए अजवाइन हम लोग बोलते हैं, बट अजवाइन जो है वो एसिडिक है, तो जीरा जो है वो हाईली अल्कलाइन है। तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन दे देते हैं। मुझे नहीं पता है ना सामने वाले का एसिड बॉडी या क्या है, तो बेटर आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन रोस्ट करके पाउडर बना के ले सकते हैं, या तो कच्चा भी आप पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको बैलेंस करेगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करेगा। आप फ्लैक्स सीड्स भी ले रहे हैं, काफी लोगों ने पूछा गर्म पड़ेगी क्या, गर्म पड़ेगी क्या, गर्म पड़ेगी क्या। जी नहीं, अगर आपने
फ्लैक्स सीड्स लिए हैं और 3 लीटर पानी का कंजम्पशन किया है, तो आपको कभी भी फ्लैक्स सीड से अल्सर होना या फ्लैक्स सीड से कोई भी गर्मी बॉडी में नहीं बढ़ सकती है। पता है, अलसी से ज्यादा तो एसिड आप ले रहे हो वो मिर्ची का एसिड है, लेकिन हर कोई अपने हर खाने में मिर्ची तो डालता ही है, चाहे वो लाल मिर्ची हो या हरी मिर्ची है, लेकिन बदनाम हम लोग अलसी को करेंगे। बट नॉर्मली लाइफ में हम लोग कितना एसिड ले रहे हैं, हमारी थाली के अंदर हम लोग कितना एसिड ले रहे हैं। सैलेड हाईली अल्कलाइन, रॉ फूड जितना भी है वो हाईली अल्कलाइन है, लेकिन हम जब उसे गर्म कर लेते हैं तो वो एसिडिक बन जाता है। लेकिन उसका एक मात्रा हर एक की अलग अलग है कि जहाँ पे वो एसिड और अल्कलाइन बेस हो जाता है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। अभी फ्रूट्स की जब बारी आती है, काफी लोगों के क्वेश्चंस मन में होंगे कि फ्रूट्स एसिडिक अल्कलाइन क्या है, विटामिन सी ये वो ब्ला थिंग्स। हमें डॉक्टर फतेह मंगेर मलानी, जिनके हम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सिंपल फंडा दिया था कि जो फल अपना स्वभाव नहीं बदलता है वो अल्कलाइन है, और जो फल अपना स्वभाव बदलता है दैट इज एसिड। अभी सोचिए स्वभाव कौन कौन बदलता है, तो जैसे मैंगो, यस मैंगो सबको बहुत पसंद है, वो एसिड हो या अल्कलाइन हो लेकिन हम तो खाएंगे ही। बट मैंगो इज हाईली एसिडिक फ्रूट क्योंकि वो अपना स्वभाव खट्टे से मीठा करता है। पाइनएप्पल हम लोग अल्कलाइन में लेते हैं, भले वो खट्टा है लेकिन वो अपना नेचर नहीं बदलता है। वैसे ही लेमन अपना नेचर नहीं बदलता है, आंवला अपना नेचर नहीं बदलता है, इमली भी है वो अपना नेचर नहीं बदलती है। तो जो अपने नेचर नहीं बदलते वो खट्टे के खट्टे ही है, विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन कोई भी खट्टी चीज सूर्यास्त के बाद नहीं लेनी चाहिए, फिर वो लेमन हो, इमली हो या कोकम हो। कोई भी खट्टी चीजों को एक बैलेंस, एक टाइम होता है 6 बजे के पहले। कोई भी सात्विक फूड हमें लेना है वो 6 बजे के पहले ही हमें लेना है। 6 बजे के बाद हम कौन सा फूड ले सकते हैं, तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। ये चीजें जो है वो सूर्यास्त के बाद हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाती है, इसलिए हम उसे गर्म चीजें डाल के उसे बढ़ाते हैं। आइडियली देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद कोई भी जानवर कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो 6 बजे के बाद प्रेम से खाना खाता है, उनकी सुबह हो जाती है। हर ऑर्गन का एक टाइम है, उस ऑर्गन को हर टाइम पे आराम देना जरूरी है। वैसे ही जो लिवर का पूरा गॉल ब्लैडर जो है वो अपने बॉडी के एसिड को बराबर से एब्जॉर्ब करते रहता है, तो लिवर को एक अच्छा सा नैप देना जरूरी है। लिवर को फास्टिंग की जरूरत है, इसीलिए रात को 10:30 बजे से लेके सुबह देखा जाए तो एटलीस्ट सुबह 4:30 बजे तक का जो टाइम है वो लिवर का टाइम है, जहाँ पे हमें उसे पूरी तरह से आराम देना रहता है। इसलिए अल्कोहल का कंजम्पशन या कुछ भी हो 10:30 के बाद कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। पानी भी अगर पीना है तो जस्ट एक सिप पानी पीना है। 10:30 बजे के बाद पानी को भी आप अवॉइड कीजिए, टोटल फास्ट लिवर को दे दीजिए। किसी ने पूछा था सवाल फैटी लिवर के लिए, बट ये फैटी लिवर लेट नाइट डिनर, लेट नाइट सोना उसकी वजह से होता है। तो अगर हम लोग वहां पे ध्यान देंगे तो लिवर हेल्दी रहेगा, और हेल्दी लिवर ही हमारे बॉडी में अल्कलाइन को बैलेंस करेगा। किडनी अगर हेल्दी रहेगी तो हमें बैलेंस इजीली हो जाएगा। तो जैसे सीजन वाइज हम लोग का खाना, ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा। सीजन वाइज जैसे हम लोग खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो अल्कलाइन फ्रूट्स एंड अल्कलाइन वेजिटेबल्स हमारे सामने आते हैं। जैसे वाटरमेलन है, मस्क, ऑल मेलन्स वो गर्मी के सीजन में हमें मिल जाते हैं। ताड़गोला हमें गर्मी के सीजन में मिलता है। ये जो चीजें हैं वो हाईली अल्कलाइन है। जब बाहर एटमॉस्फेयर में एसिड होता है तब नेचर ही अल्कलाइन फूड को ज्यादा बनाता है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देके हम सिर्फ मैंगो खाते हैं क्योंकि हमें लगता है मैंगो ही नेचर में है। यस, मैंगो बॉडी के लिए अच्छा है, एसेंशियल है, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। हर चीज लिमिट तक रहेगी तो वो बैलेंस है, लिमिट से बाहर जाएगी तो वो ज्यादा तकलीफ देती है। इसीलिए ठंडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडी होती है तब हम लोग हमारे शरीर में एसिडिक फूड लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एसिडिक फूड हमें ज्यादा मिलता है।
तो जैसे सौंठ हो गया, पिपरामुल हो गया, बाजरा हो गया, नाचनी हो गया, ड्राई फ्रूट्स, ये सब हम लोग ठंडी के सीजन में हम ज्यादा ले सकते हैं। गर्मी की सीजन में हम लोग अल्कलाइन फ्रूट जैसे ड्राई फ्रूट जो हमें लेने हैं, तो ड्राई फ्रूट में मैं ज्यादा करके किशमिश और सौंफ, जीरा का पानी, गुड़ वाला नींबू पानी, ये सब चीजें जो है वो हमारी गर्मी को नॉर्मल पे लेके आता है। कोकम का शरबत है, कोकम का इस्तेमाल है, महाराष्ट्र लोग सोल कड़ी बनाते हैं, वो पीते हैं, तो वो क्या करता है, हाईली अल्कलाइन बना देता है। तो सेम वैसे ही बारिश की सीजन जब आती है तब हमें क्या करना है ना, एसिड और अल्कलाइन दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि जब हम लोग एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके चलेंगे तो हमें हमारी बॉडी को बारिश की सीजन में बैलेंस कर सकेंगे। इसलिए हम लोग अदरक का इस्तेमाल बारिश में हम लोग ज्यादा करते हैं, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे सूप हम लोग पीते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम हमारे एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर देते हैं। सो मुझे लगता है मैंने मेरा 100% दिया है आपको। आप जरूर ये चीजों को ध्यान में रखना और फॉलो करना। अल्पा, ओवर टू यू, क्वेश्चन आंसर राउंड हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू रेणुका, इतना वंडरफुल और इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का कि इट वाज सच अ, लोग इतना एंजॉय कर रहे थे और आप नॉन स्टॉप बोल रहे थे, हम लोग को इतना मजा आ रहा था सुनने के लिए। सो नाउ क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग ले रहे हैं। चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, आप लोग अपने जितने भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मैं रेणुका से बात करके आपको पूरे आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका ट्राई करूंगी लेने के लिए। आज के दिन, आज हमारा लास्ट डे है, ये 5 डे वेब सीरीज अपनी खत्म हो रही है। तो रेणुका, पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा हुआ है कि अवाकाडो आज के बहुत फेमस में है, सब लोग ले रहे हैं अवाकाडो, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सी, अवाकाडो जो है वो डेफिनेटली अल्कलाइन फ्रूट में आता है, बट मेरा एक सिंपल एक फंडा है कि बी इंडियन बाय इंडियन और रीजनल सीजनल। तो जब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अवाकाडो एक्चुअली इंडियन फ्रूट नहीं माना जाता है, तो ट्राई कीजिए कि एवाकाडो अवॉइड करें। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेना है, तो डेफिनेटली एवाकाडो में लेमन स्क्वीज करके उसका आप चटनी बना के आप या स्प्रेड बना के ले सकते हो। ओके ओके, और एक है, ये सब बहुत लोग, वेरी कॉमन क्वेश्चन, अजवाइन एंड जीरा मिक्स कैन बी टेकन बाय whom एंड हाउ? अजवाइन एंड जीरा मिक्स करके कौन और कैसे ले सकते हैं? सी, अजवाइन एंड जीरा कोई भी इंसान ले सकता है। आप 50 ग्राम जीरा ले लो, 50 ग्राम अजवाइन ले लो, दोनों को मिक्स करके पाउडर बना के रख दो। तो क्या होता है, एसिड वाला इंसान भी ले सकता है, अल्कलाइन जिसको बहुत ज्यादा लग रहा है वो भी ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को, वात, पित्त और कफ, ये तीनों को बैलेंस करने के लिए जीरा और अजवाइन हर एक को लेना चाहिए। सिर्फ छोटे बच्चे हैं तो दिन में एक आधा चम्मच ले लिया, और अगर बड़े हैं तो दिन में 2 बार 1-1 चम्मच ले लेना है। ओके ओके, अभी रेणुका यहाँ पे एक जन पूछ रहा है कि आयुर्वेदा में बताया गया है कि कोई भी चीज रॉ खाना, कुकुम्बर, कैबेज, सैलेड घी में डाल के गर्म करके ही खाना चाहिए, तो उस पर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बोला कि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का जो है थोड़ी बहुत चीजों में हम लोग क्लैश करते हैं। yes. तो जब आप किसी थेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उनका इंटेंशन आपके डाइट के साथ क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस हिसाब से करेंगे। जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो वहां पे हम लोग रॉ डाइट नहीं दे सकते हैं, तो वहां पे हम लोग बोलते ही है कि यस, आपको बॉइल या कुक करके आपको खाना जरूरी हो जाता है। जहाँ पे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तो यू कैन हैव रॉ वेजिटेबल्स, और अगर ऐसा है तो आप सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। पूरा मत पकाइए, उसे हाफ पका के लीजिए। ओके अच्छा, और एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि लेमन कैन बी टेकन बाय आर्थराइटिस पेशेंट? एब्सोल्युटली। जहाँ पे लेमन में भी कैसे होता है ना, लाइम एंड लेमन, हम लोग बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब ग्रीन लेमन जो कच्चा होता है, कच्चा लेमन जो है वो आर्थराइटिस वाले पेशेंट ले सकते हैं। क्या होता है, जैसे वो पकने लगता है ना, जितना वो सनलाइट मिलता है वो ज्यादा पकने लगता है, उतना उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब हमें आर्थराइटिस पेशेंट को देना रहता है तो हम लोग गाउठी लेमन आते हैं, दैट इज कॉल्ड इडालिम्बू, तो वो आर्थराइटिस वाले पेशेंट ले सकते हैं। ओके ओके, और एक है क्वेश्चन, ये सूर्य नाड़ी के बारे में है, जो आपने अभी बताया कि इज इट गुड टू ब्रीथ फ्रॉम सूर्य नाड़ी आफ्टर द फूड, आफ्टर खाने के बाद? यस
Yes. ओके Yes. ओके, दूसरा एक है कि खाने के टाइम सैलड ले सकते हैं, सैलड जो खाते हैं वो खाने के टाइम ले सकते हैं? यस, एक्चुअली क्या करना चाहिए ना, पहले ही अगर आप पूरा रॉ डाइट नहीं ले सकते हो ना, तो एटलीस्ट जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप पहले रॉ फूड ले लीजिए। तो रॉ फूड लेने से क्या होता है ना, सलाइवा बहुत, देखिए आप उसको चबाने के लिए टाइम लगता है, और जितना टाइम चबाने के लिए लगता है उतना सलाइवा ज्यादा बनता है, तो वो Okay. अल्कलाइन बॉडी को बेस दे देता है। इसलिए रॉ फूड आप खाने के साथ ले सकते हो, साथ में भी ले सकते हो, लेकिन माय थिंग इज कि पहले स्टार्ट करते समय पहले ककड़ी या गाजर या कुछ भी आप खा लीजिए और उसके बाद लीजिए। ओके ओके, अभी ये बहुत लोग शायद मतलब मेरे दिमाग में भी है क्वेश्चन कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? बहुत लोगों का अभी तो प्रॉब्लम है ही डाइजेस्टिव सिस्टम। या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक तो देखिए, जैसे हमने अगर हमारी कल जिस तरह से हमारा डॉक्टर कामत ने डिस्कशन किया कि बच्चों को 2 साल की उम्र से ही हमें उनको डाइजेशन पे ध्यान देना सिखाना चाहिए। तो पॉटी, मैं अपने बच्चे को हमेशा पूछती हूँ कि पॉटी बराबर हुई? क्या मम्मा, आप नेचुरोपैथ हो तो आप ये सवाल, लेकिन यही सवाल मेरा बचपन से रहता है, पॉटी बराबर हुई कि नहीं? हमें शर्म आती है, हमें डंडा लगता है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे अगर पॉटी बराबर नहीं हुई मतलब क्या हुआ, यूडीएफ अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल में पास हो रहा है कि नहीं, वो हमें देखना जरूरी है। सेमी सॉलिड स्टूल पास हो रहा है क्या, वो हमें देखना जरूरी है। और कलर क्या आ रहा है, ये तो ये 3 चीजों से हमें पता चलता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उस चीज के लिए क्या करना है, मॉर्निंग में ही आपको पानी का इंटेक जो है वो जितना आप ले सको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 लीटर पानी पीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी 1 ग्लास पानी की है, आप 1 ग्लास लीजिए। 3 ग्लास पानी की है, आप पानी लीजिए। सिंपल चीज है, अगर मुझे क्लीनिंग करना है तो क्लीनिंग के लिए झाड़ू लगेगा, और मेरे लिए मेरे बॉडी का झाड़ू जो है वो पानी है जो सफाई करेगा। सिंपल इज दैट। नंबर 1 इज वाटर, नंबर 2 इज रॉ डाइट। फाइबर फूड हमारे बॉडी में जाना जरूरी है। फ्लैक्सीड्स हम खाना खाने के पहले ले लीजिए, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो कर्व्स होते हैं उस कर्व्स को पुश करना जरूरी हो जाता है, तो वो पुश हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलता है, इसीलिए हमें फ्लैक्सीड्स खाना जरूरी है। ओके ओके, और ये जो आप बोल रहे हैं पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो उसमें हम लोग लेमन डाल सकते हैं? यस, ल्यूक वार्म वाटर में, हॉट वाटर में गर्म पानी मत डालिए, ल्यूक वार्म वाटर लीजिए और उसमें गर्म पानी डाल के आप पीजिए। आपके बॉडी के लिए और डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंडनट्स के ग्राउंड नट्स खाओ, उसका ऑयल ले लो, क्योंकि बहुत लोगों को उससे डाइजेशन का इश्यू हो रहा है, बर्प आते रहते हैं। तो ग्लूटेन है क्या, वो ग्राउंडनट्स को ग्लूटेन में आता है? नहीं, क्या होता है ना, ग्राउंडनट्स जो एक्चुअली क्या हो गया है ना कि हम लोग जो ऑयल्स है बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे हमें 4 ऑयल बताया गया है, तो ये 4 ऑयल भी हम लोग सीजन वाइज भी हम लोग खा सकते हैं। बॉम्बे में रह के भी अगर हम लोग सीजन वाइज ऑयल चेंज करते रहेंगे तो क्या होता है, जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो वो ऑयल हमारे बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो जो लोग एक ही ऑयल पे स्टिक होते हैं, बाहर पता नहीं होटल में कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, तो वो हमें एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ग्राउंडनट ऑयल से प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक ग्राउंडनट के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्राउंडनट इटसेल्फ इट्स एसिडिक, बट उसको अल्कलाइन, जैसे हम लोग उसे भिगो के फिर हम लोग अगर उसे बॉईल करके खाते तो एसिडिटी नहीं होगी। ऑयल जब बन जाता है तो ऑयल वो बैलेंस करता है, ना एसिड को बढ़ाता है ना अल्कलाइन को कम करता है, वो बैलेंस फूड में आता है। इसीलिए पीनट ऑयल वी कैन यूज इजीली इन आवर फूड। यस यस, और स्पेशली हम लोग महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्राउंडनट्स हमारा बेस है, मतलब वहां पे तो यूज होना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, यस। एब्सोल्युटली। अच्छा, बहुत लोगों को सैलेड खाते हैं तो उनका पित्त जैसा होता है, तो व्हाट इज द रीजन? क्या होता है ना, काफी जन का ये है कि मैंने ये चीज खाई फिर मुझे उससे एसिडिटी हुई, बट कभी भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग डाइजेशन नहीं है कि खाया और तुरंत आपको एसिडिटी हुई। बट क्या होता है ना, हमारे डायफ्राम की एक एसिड का लेवल ऑलरेडी रहता है, एक लेयर रहता है। जैसे ही मैंने रॉ फूड खाया वो एसिड बाहर निकल रहा है, तो हमने क्या बोल दिया, इस वजह से एसिडिटी हो रही है। नहीं, क्योंकि रॉ डाइट जब आप लेते हो तो इट्स अल्कलाइन, इफ यू आर टेकिंग अल्कलाइन
तो वो क्या करेगा, झाड़ू का काम करेगा ना, तो एसिड को निकालता है, बट बदनाम क्या हो जाता है कि इसकी वजह से मुझे एसिडिटी हुई। एग्जैक्टली, यस यस। अच्छा, और एक है गुजरात से हमारे साथ कोई है, उन्होंने बोला कि कॉपर, आपने बताया कि महाराष्ट्र में अच्छा नहीं है, मुंबई में अच्छा नहीं है, तो वो गुजरात में जो कॉपर वाला पानी पियेंगे तो उनके लिए अच्छा है। यस, लेकिन गुजरात में काफी एरिया में, जैसे नर्मदा का पानी वहां पे उन लोग को मिलता है, काफी जगह पे विदाउट क्लोरीन वाला पानी है, तो उस विदाउट क्लोरीन वाला अगर पानी है तो कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वहां पे ज्यादा करके आरओ का पानी इस्तेमाल होता है, दैट इज ऑल्सो अगेन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर आप चांदी यूज करोगे, मटके के बर्तन में ही आप डाल दीजिए चांदी का ग्लास, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ओके अच्छा, ये चिया सीड्स का बहुत है अभी, बिकॉज अब सब लोग डाइट के डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो चिया सीड्स उनको सजेस्ट करते हैं, तो वो एसिडिक है या अल्कलाइन है? एब्सोल्युटली चिया सीड्स अल्कलाइन है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि हम इतना चीजें भी ध्यान दें कि बहुत ज्यादा अल्कलाइन के पीछे अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे ना, तो स्पर्म काउंट कम हो जाना, इम्पोर्टेंसी आना, ओवरीज में जो अपने एग्स जो बनते हैं, फर्टाइल होते हैं, वो सब चीजों पे भी इफेक्ट होता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग टू एंड यही बोल रही हूँ, बैलेंस। तो चिया सीड्स हमारे यहाँ का नहीं है, पहली बात तो हमारे यहाँ पे होता है फालूदा सीड्स, जिसे हम गुजराती में तकमरिया बोलते हैं, दैट इज फेयर इनफ। चिया सीड्स बहुत महंगे आते हैं और ये कमर्शियल है, व्हाई टू टेक चिया सीड्स। या और अपने वहाँ जो तकमरिया है वो तो ज्यादा फाइबर भी इतना सारा होता है कि वो एब्सोल्युटली लिए डाइजेशन में भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक का है क्वेश्चन कि वेजिटेबल जूस कंबाइन करते हैं, उसमें बीट एंड आंवला को कंबाइन कर सकते हैं? सी आंवला इज द थिंग कि आप किसी में भी डालें, आंवला अपना नेचर बदलेगा नहीं, वो एक ही फ्रूट ऐसा है जो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। तो आप गाजर, आंवला और बीट का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेशली विंटर में, आंवला विंटर में सीजन वाइज, एब्सोल्युटली सीजन वाइज। फ्रेश आंवला सीजन वाइज, और अगर उसका जूस आप पी रहे हो वो प्रोसेस किया हुआ है, तो वो आप पूरा महीना और पूरा साल आप ले सकते हो। लेकिन फ्रेश पी रहे हो तो सिर्फ अपने विंटर में लेना है। 4 महीने का आंवला आपका 1 साल तक आपकी इम्यूनिटी को बना के रखता है, सिर्फ 4 महीना। ओके ओके रेणुका जी, और एक है, वे प्रोटीन इज अल्कलाइन और नॉट? जो वे प्रोटीन आज के में सब ले रहे हैं, जिम में जाते हैं। देखिए, कोई भी प्रोटीन, मैं बता रही हूँ कि वे प्रोटीन मैं अल्कलाइन में नहीं मानती हूँ। रीजन उसका कि किडनी को एक्सेस ऑफ प्रोटीन किडनी को डैमेज करता है। तो वे प्रोटीन अगर आपको लेना ही है तो आप क्या कर सकते हो, दूध को फाड़ के, पनीर निकाल के जो पानी बचता है उसे अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो किडनी को प्रेशर नहीं देगा। तो वो वे प्रोटीन इज मच बेटर देन पैकेट वाला जो आप लेते हो उससे। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ज्यादा एक्सेस अगर प्रोटीन हम लोगों ने ले लिया तो अपना किडनी को डैमेज होने का चांसेस ज्यादा है। किडनी एंड लिवर दोनों डैमेज हो जाती है, क्योंकि कीटो डाइट जब हम लोग करते हैं तो कीटो डाइट करने से क्या हो रहा है ना, प्रोटीन एक्सेस ले लेते हैं और उस प्रोटीन की वजह से किडनी एंड लिवर डैमेज केसेस हमारे पास आ रहे हैं ऑलरेडी। यस एग्जैक्टली। और कीटो डाइट का क्या है, वो ऑन द स्पॉट तो रिजल्ट दे देता है, लेकिन पीछे हमको बहुत प्रॉब्लम कर है, क्योंकि मसल्स टूट जाते हैं ना, मसल्स के सेल्स ही टूट रहे हैं। यस ओके। और एक है क्वेश्चन कि हम लोग अल्कलाइन वाटर कैसे बनाएं, जो आपने ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन वापस लोग पूछ रहे हैं, आप थोड़ा रिपीट कर लें तो मेरा ये एब्सोल्युटली जैसे मैंने बताया टॉनिक वाटर के बारे में एक्चुअली मुझे बताना था। तो अल्कलाइन जैसे स्पाइसेस जो है ना, स्पाइसेस का खुद का पर्सनल नेचर जो है वो अल्कलाइन है, लेकिन जब स्पाइसेस को हम मिक्स कर देते हैं, गरम मसाला हाईली एसिडिक, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी वेट रिडक्शन करना है और बॉडी में एसिड ज्यादा है, वाटर रिटेंशन ज्यादा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टार एनिस करके एक स्पाइसेस होता है जिसे चक्री फूल कहा जाता है। तो 4-5 वो चक्री फूल ले लिए पूरे दिन में आपको जितना पानी पीना है उस पानी में आपने बॉईल कर लिया, और वो पानी आप पूरा दिन पियोगे तो वो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपका फैट सेल्स भी कम करेगा, लिवर एंड किडनी को भी फिल्टर करेगा, वो एक ले सकते हो। दूसरा जो है, एक दिन इलायची का पानी ले लिया, एक दिन जीरा का पानी ले लिया, एक दिन अजवाइन का ले लिया,
मिंट का ले लिया, सीजनल लेना है। गर्मी के सीजन में आप अजवाइन का पानी नहीं ले सकते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गुलाब के पेटल्स आप डाल दीजिए पानी में और वो पानी पीजिए, उसे उबालने की जरूरत नहीं, सिर्फ डाल के रखोगे तो भी वो अल्कलाइन बन जाता है। तो स्पाइसेस को अलग अलग, इलायची, देन सिनेमन जो है, दालचीनी, तो ये सब चीजें आप अलग अलग करके अगर आप वो पानी पी रहे हैं तो वो पानी आपको अल्कलाइन ज्यादा देगा। और अगर उसी पानी में आपने सिल्वर का ग्लास डाल दिया तो भी आपका वो पानी अल्कलाइन हो सकता है। बट एक ध्यान रखिए, ये एक छोटी सी चीज कि अगर मुझे जीरे का पानी से अच्छा लग रहा है, मैं रोज जीरे का पानी पी रही हूँ, बट फिर मुझे उससे सर्दी, एक टाइम आएगा जब बॉडी का एसिड एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर सर्दी शुरू हो जाएगी, तब जाके वो पानी स्टॉप करना है। स्टार्ट करना इजी है, लेकिन कब स्टॉप करना है वो अपने बॉडी को पूछ के स्टॉप करना जरूरी भी है। एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट आपने ये बताया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे सूट हो गया तो हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं और कहाँ स्टॉप होता है उनको मालूम ही नहीं होता है। या अभी और एक है क्वेश्चन कि आपने बोला कि फ्लैक्स सीड्स हमें रेगुलरली लेना है मील के पहले, तो वो सॉरी, बोलिए अगेन। या ओके, आपने बोला कि फ्लैक्स सीड्स हमें रेगुलरली लेना है मील के पहले, तो वो हम लोग रेगुलरली मतलब जब तक हमको चाहिए तब तक ले सकते हैं? जैसे आपने बोला कि जीरा का पानी का एक लिमिटेशन होता है, वैसे फ्लैक्स सीड का भी कोई लिमिटेशन है? नहीं, फ्लैक्स सीड्स जो है वो आप एवरीडे ले सकते हैं। सिर्फ क्या है, गर्मी की सीजन जब आती है तब उसपे आप पानी ज्यादा लीजिए, बस। कहने का मतलब यही है कि आपका गर्मी के सीजन में भी अल्कलाइन फूड आपका प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। ओके, अभी है ना आजकल में चिक्की बन रही है, फ्लैक्स सीड्स की चिक्की, तिल की चिक्की, तो उसमें फ्लैक्स सीड और काला तिल मिक्स होते हैं, कौन सा भी तिल मिक्स होता है, तो वो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर उसे रोस्ट कर लिया है तो रोस्ट करने के बाद ये चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं थोड़ा, जब इसे मिक्स किया जाता है ना, क्या होता है ना, हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। तो जब तक वो खुद नहीं खाएंगे, खुद को साइड इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, इफेक्ट या साइड इफेक्ट, तब तक कोई भी उनको हेल्प नहीं कर सकेगा। ओके, कभी मेरी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा मुझे फील कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा है, तो इट्स अ इंडिविजुअल थिंग। ओके, अच्छा, ये बहुत मतलब मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं मुझे पूछते रहते हैं कि हम लोग साबूदाना खाते हैं, साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना का कोई भी चीज, तो उनको पेट में दुखता है, तो वो मतलब व्हाट इज द रीजन? देखिए, जब साबूदाना आप सोक करते हैं, एक तो उसका तरीका है कि उसको कम से कम आप 6 से 8 घंटा उसको भिगो के रखिए, पहला प्रोसेस वो है। दूसरी चीज है कि जब भी हम लोग साबूदाना गैस्ट्रिक फील करवाता है, क्योंकि वो कंदमूल से बनता है, तो कंदमूल ये ऑलवेज गैस्ट्रिक देता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ब्लैक पेपर पाउडर कंपलसरी डालना है, अदरक छिलके कंपलसरी डालना है, तो वो उसे हम लोग बैलेंस करके खा सकते हैं। ओके, बट किडनी के लिए साबूदाना बहुत अच्छा है। हम लोग डायलिसिस पेशेंट्स को साबूदाना हम लोग देते हैं खाने के लिए, ताकि उनका किडनी प्रॉपर फिल्टर हो सके। यस, और आई थिंक सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी जो आज कॉमन है आजकल में, वहां पे भी कभी कभी साबूदाना की खिचड़ी दी जाती है। यस, या ओके, और एक एक क्वेश्चन है कि क्लोरीन वाटर हम लोग पी रहे हैं, वो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल, बॉम्बे में कभी भी जो भी पानी हमारे नल में आता है वो क्लोरीन वाटर ही है। आपको अगर टेस्ट करना है विदाउट क्लोरीन वाला पानी तो मैं बता सकूंगी, हिमालय की जो बॉटल्स आती है जिसे लिखा जाता है मिनरल वाटर, आप उसका टेस्ट कीजिए, इट्स वेरी डिफरेंट वाटर। तो जो प्योर मिनरल वाटर है, दैट इज, उसका टेस्ट ही आपको समझ में आएगा। नहीं मतलब आई थिंक तो उनका पूछने का तरीका है कि हम लोग अगर ये वाटर प्यूरिफाई में सब अभी तो एक्वागार्ड सब में से पानी ले रहे हैं, तो वो अच्छा है कि नहीं? देखिए, B12 सबसे ज्यादा उसमें से निकल जाता है। मैंने पहले ही बोला, अगर आप बेस्ट इज पानी उबाल के पीजिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप कोई भी एक्वा या आरओ का ये सब पानी पीते हो, हाईएस्ट B12 हमारा उसमें निकल जाता है। क्यों आज के लाइफ में लोगों का B12 इतना कम आ रहा है? बिकॉज ऑफ हमने सालों से एक्वा का पानी पिया है, इसलिए आज B12 कम आ रहा है। 10 साल पहले से आरओ जिसने चालू किया है, उसका आज आप विटामिन टेस्ट करवाओगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा। ये हमारा रिसर्च है।
एग्जैक्टली। तो मतलब नेचुरल पानी जितना पियो उतने लिए अपने लिए अच्छा है। या बॉईल ओके करके पानी पियो बेस्ट। ओके। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा बॉडी अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है? देखिए, ये आपको आपके सिम्टम्स के ऊपर से पता चलेगा, लेकिन क्या होता है ना, हमें एक्चुअली सब कुछ पता होता है, आपको कोई किसी की जरूरत नहीं होती है, बट हमारा टेस्ट जो है ना वो एसिडिक फूड के लिए इतना ज्यादा हो जाता है ना कि हम अपने आप को सहला लेते हैं, मना लेते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट एक्चुअली हमें हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन पता होता ही है। यस यस एग्जैक्टली। बहुत लोग बोलते हैं, पूछ रहे कि सुबह हल्दी लेते हैं तो क्या बॉडी में रैशेज आती है? हल्दी क्या एसिडिक फूड है? देखिए, हल्दी का मात्रा होना जरूरी है। लोग आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, अरे हल्दी एंटी कैंसर एजेंट है, ये है वो है, तो चालू हो गए। जी नहीं, उसे हमेशा दवाई के तौर पे लीजिए। 2 पिंच हल्दी से ½ टीस्पून हल्दी आप ले सकते हो, और जब शुरू करते हो तो 1 पिंच से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे 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 उसमें बढ़ाइए। मैं मेरे कोई भी डाइट के अंदर 2 पिंच हल्दी से ज्यादा मैं लोगों को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे रोज लेना है, तो वो धीरे 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 मेरी बॉडी के इम्यून को बढ़ाते रहेगा। बट मैंने एक साथ में ले ली तो वो मुझे बहुत ज्यादा एसिड भी करेगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि क्यों लिखिए, क्योंकि ये कोरोना के टाइम पे लोगों ने इतना हल्दी लेना चालू किया है, उसकी वजह से सबका गला भी छिलने लगा है और वो ऑपोजिट हो गया है। एब्सोल्युटली। यस यस या ओके। और पोमोग्रेनेट जूस जो सुबह लेते हैं वो एसिडिक होता है? पोमोग्रेनेट पोमोग्रेनेट जूस पहले तो मैं बताऊंगी कि चबा के खाओ, ताकि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, मेरा सलाइवा उसके साथ जा रहा है ना। और अगर आप जूस भी ले रहे हो ना, तो जूस को भी चबा के लीजिए। च्यू योर ड्रिंक एंड च्यू योर ड्रिंक, क्योंकि वो जितना आप चबा के पानी को या लिक्विड को लोगे ना, उतना सलाइवा ज्यादा जाएगा। एंड ईट एंड फूड आपको जो है वो ड्रिंक करके लेना है। यस यस। अच्छा, अभी आपने जो आरओ पानी के बारे में बताया, तो अभी अभी लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग वो आरओ पानी को मटके में डाल दिया और उसके अंदर चांदी का कॉइन डाल दिया तो वो अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं। ऑलरेडी उस पानी में कुछ जोर रहा ही नहीं है। ओके। तो वो निकाल के वो सब ने वो आरओ ने सब निकाल दिया हुआ है, तो अभी कुछ नहीं बचने वाला है, राइट? मुझे बताइए, राइस और व्हीट होता है वो एसिडिक फूड है? राइस और गेहूं व्हीट, गेहूं हाँ। यस। अभी आप रहते महाराष्ट्र में हो और आप बासमती चावल यहाँ पे खाते हो, तो यस, मैं यही बताऊंगी, बासमती राइस होता है नॉर्थ इंडियन के लोगों के लिए, क्योंकि वो वहां पे पकता है। अपने यहाँ पे जाड़ा चावल है, उकड़ा चावल है, कोलम है, वाड़ा कोलम है, ये जो चीजें हैं, अगर आप यहाँ का रीजनल ले रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बासमती राइस आपको डाइजेस्ट के लिए हैवी जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट है। तो जब ह्यूमिडिटी में होता है तब हमें बैलेंस करके लेना जरूरी है। ओके, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। साबूदाना अगर हमने दूध में लिया, मिल्क में, उपवास के टाइम पे बहुत लोग लेते हैं, तो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन? देखिए, ये कॉम्बिनेशन में अगर मैं एज ए नेचुरोपैथ बात करूँ तो दूध का कॉम्बिनेशन ही हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। बट अगर आपको दूध में बनाना भी है तो पहले क्या करो ना, पानी में उसे बॉईल कर लो, कुक कर लो, और उसके बाद उसके अंदर दूध डाल के थोड़ा कुक करके फिर आप ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग पनीर फ्रॉम मिल्क यूजिंग विनेगर, तो वो पानी अच्छा है क्या? पनीर में हम लोग विनेगर डाल के उसको पनीर बनाते समय फाड़ते हैं, तो वो पानी अच्छा है विनेगर वाला? सी एक्चुअली बेस्ट इज कि आप जितना हो सके उतना नींबू से पनीर को फाड़ो, नंबर 1। और अगर आप कर रहे हो तो जो अपना नॉर्मल विनेगर, व्हाइट विनेगर होता है, उससे आप फाड़ के ले सकते हो। ओके, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ कि सुबह बॉडी क्लीनिंग के लिए क्या पी सकते हैं? सुबह बॉडी क्लीनिंग के लिए आप लेमन हनी वाटर, उसके अंदर आप धनिया जीरा पाउडर डाल सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर एक चम्मच जितना डाल दीजिए, आधा नींबू लीजिए, 1 चम्मच शहद ले लीजिए, और अगर डायबिटिक हो तो आप शहद अवॉइड कीजिए। और धनिया जीरा पाउडर डालने से आपका बॉडी क्लेंजिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा।
ओके तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड कंप्लीट करें। रेणुका जी बहुत अच्छा, मजा आया, सबने बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन हम लोग अभी कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में वो हम लोग कंप्लीट कर पाए। तो मैं कंक्लूडेड रिमार्क यहाँ पे देना चाहूंगी कि आपने जिस अच्छी तरह से हमको पीएच लेवल, जो आज बहुत लोगों को सिर्फ पीएच लेवल के बारे में मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं, जो आपने आज इतना अच्छी तरह से सबको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। प्लस आपने डाइजेशन, लोगों को लगता है एसिडिटी, कुछ खाया और एसिडिटी हो गया, लेकिन वो कितना लंबा प्रोसेस है डाइजेशन का, कि पहले गैस फॉर्म होता है, उसके बाद एसिडिटी होती है, और वो जाके जॉइंट्स में जाके हमको अर्थराइटिस भी हो सकता है उसकी जगह। आपने जो बताया कि पानी एक मेडिसिन हो सकता है हमारी, अगर हम लोगों ने पानी को ठीक तरह से पिया, ठीक तरह प्रोसेस से पिया, तो वो पानी अपना मेडिसिन ही है, मैं यही बोलूंगी, वो मेडिसिन ही है। और दूसरा, आपने जिस तरह से अल्कलाइन फूड, एसिडिक फूड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके हमको समझाया, वो बहुत ही अच्छा था। और ड्राई फ्रूट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि ड्राई फ्रूट्स जो होता है वो हम लोग ऐसे ही खाते, वो यहाँ पे गर्मी की सीजन में या गर्मी के जहाँ पे वेदर है वहां पे हम लोग को ड्राई फ्रूट ऐसे नहीं खाना चाहिए, सोक करके उसका पूरा फायदा लेना चाहिए, तो हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिल सकेंगे। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के बारे में बताया, सीजनल फूड के बारे में, डाइट के बारे में आपने समझाया। बहुत अच्छा सेशन था। वी रियली वेरी थैंक यू टू यू कि हम लोगों ने इतना अपने ओपनली और वेरी सिंपल लैंग्वेज आपने आज सेशन लिया और सबको बहुत सारा नॉलेज मिला यहाँ से। थैंक यू रेणुका जी अगेन। ओवर टू यू मेघा। We would like to extend our gratitude towards Dr. Suryaban Dongre, Dr. Kamath, Dr. Renuka Vyas for being a part of this 5-day health webinar series from 7 September to 11 September 2020. Thank you to all the viewers for participating so actively. Myself, Megha Patel, team member of Kash Foundation, signing off.